And today we have a try to understand what is a follow and how exactly follow will work. Okay, it's a very important topic because when we have a apply LL1 construction table, LL1 partial table, at that time we have a required to to apply to particular tools first and follow. Okay, उसको समझते हैं क्या है ये. And we have already discussed की, ठीक है, we have already discussed what is first, ठीक है, and now we have a try to understand what is a follow, how it is exactly work. Okay, that is a very important phenomenon. We try to understand. You just focus on the board. We have cleared each and everything. Okay, plus only attention required on level to board. ठीक है, आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करिए. We have cleared each and everything. बेसिक से लेके और कैसे ट्विस्टिंग वो एप्लीकेशन लेवल पे अप्लाई होता है. We have learned all these things. ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे आप. So try to understand what is a follow. Follow of a given the set of a all terminal that may follow immediately to the right of a. That means first and follow both are the give the set of a terminal. Okay? The most common phenomena of this one. Okay, and here we have tried to understand what is a rule and how it is exactly work. Okay, so rule number one. What is a rule number one? We have a follow if anywhere given the follow of a. After that we have mentioned the dollar symbol. This is the our dollar symbol. ऐसी तरीके से बना के mention this. This is our dollar. Okay. If follow of a, that means it is a compulsory. We have entered the dollar symbol. And after that, if is start symbol of, is a start symbol where we started. If anybody say what is a follow of a, that means it is a dollar. And what is the second rule? We have a, okay, if as derived here beta and a as derived. For example, this is the beta and capital A or maybe something like that. It is a very important concept. Something like that as derived to beta beta capital A and capital D. Okay. Capital N, capital D, and for example, D derives to epsilon. Then, in this situation, what is a follow? That is a very important question. If like that, this situation is a happen. We need to write that. And here our capital D derived to epsilon. Is derived to epsilon. Then you have written as follow of A is equal to follow of A. Try to understand, this is a very important concept. Follow of A equal to follow of a S. Try to understand what is this.
देखिए क्या होता है फॉलो, फॉलो जस्ट गिव्स सेट ऑफ ए ऑल टर्मिनल दैट मे फॉलो इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, इमीडिएटली फॉलो व्हाट इज द राइट ऑफ ए, व्हाट इज ए इज द, जिसका मैं फॉलो निकाल रहा हूँ उसके राइट साइड में मैं उसी का नेक्स्ट का फॉलो निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल व्हेनेवर वी हैव कंसीडर द फर्स्ट, तो हम फर्स्ट क्या क्या करते थे, जो भी वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता था उसका हम फर्स्ट ले लेते थे, ठीक है। यहाँ के केस में क्या करना है, राइट साइड में जहाँ पे भी ए मिले, राइट साइड क्या है, दिस द लेफ्ट साइड, ओके, एंड दिस वन इज अ राइट साइड। तो राइट साइड वेयर इज द ए इज अवेलेबल, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए क्या है, स्टार्टिंग सिंबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो ऑफ ए, एक तो कंफर्म हो गया डॉलर, ओके। व्हाट इज द सेकंड केस ऑफ दिस वन, इफ एस डिराइव टू बीटा बी और एस डिराइव टू बीटा ए डी एंड डी डिराइव टू एप्सिलॉन। इफ कोई मुझे कहता है कि सर फॉलो ऑफ ए निकालिए, तो फॉलो ऑफ ए कैसे निकालूंगा, मैं राइट साइड में यहाँ पे क्या लिखा है, गिव द सेट ऑफ ए ऑल टर्मिनल दैट में फॉलो इमीडिएट टू द राइट ऑफ ए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है, फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए का क्या मतलब है, मुझे सेट ऑफ ए टर्मिनल चाहिए एज ए आउटपुट, और जो कि राइट साइड में ए जहाँ पे अवेलेबल हो। तो यहाँ पे इस प्रोडक्शन में राइट साइड ए कहाँ पे अवेलेबल है, दिस वन। बट हम सब क्या जानते हैं, ए इज ए, व्हाट इज दिस वन, ए इज ए नॉन टर्मिनल, इट इज ए इज ए टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, प्लीज रिस्पॉन्ड एनीवन, ए इज ए टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज ए रिटन इन कैपिटल लेटर, तो ये नॉन टर्मिनल है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ए का कोई प्रोडक्शन दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम तो उसका फॉलो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो राइट साइड में पहले मुझे क्या करना है, जैसे फॉलो ऑफ ए निकालना है, तो मैं देखूंगा कि किसी भी प्रोडक्शन में एनीवन कहाँ पे राइट साइड है, फिर देखूंगा अरे ये तो नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल का मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं फॉलो निकालूंगा कैसे, ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जहां से प्रोडक्शन आया हुआ है तो हम फॉलो ऑफ ए एस निकालते हैं। चलिए दूसरा यहाँ पे प्रोडक्शन लेते हैं, इफ एस डिराइव टू बीटा ए डी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फॉलो ऑफ ए, चलो मैं निकालता हूँ फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए का क्या मतलब है, जितने भी राइट साइड में मैं देखूंगा कि ए कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए कहाँ पे बेटा, यहाँ पे है, ओके, राइट साइड में। अब यहाँ पे क्या करें, राइट, यहाँ पे क्या करें, देखो सेट ऑफ ए टर्मिनल दैट में फॉलो इमीडिएट टू द राइट ऑफ ए, जहां पे मुझे ए मिलता है उसके जस्ट आगे के जितनी भी लोग हैं उसका मैं राइट साइड फॉलो के लिए कंसीडर करता हूँ। जैसे हम फर्स्ट में क्या करते हैं, जो भी वो प्रोडक्शन देता था पूरे प्रोडक्शन को एज ए फर्स्ट में डाल देते थे। यहाँ पे कैसे करना है, मैं देखूंगा कि जिसका भी फॉलो निकालना है वो राइट साइड में कहाँ पे अवेलेबल है, और जहां पे है उसके जस्ट इमीडिएट राइट साइड में जितने भी लोग हैं उनका फॉलो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मिला तो फॉलो ऑफ ए मुझे क्या होगा, डी मिल जाएगा, ओके, फॉलो ऑफ ए डी। तो हम देख रहे हैं डी का कोई प्रोडक्शन अवेलेबल है, अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं होती डी नॉट डिराइव टू एप्सिलॉन, तो हमें क्या होता, फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ ए एस, दिस वन, इसके हेल्प से। अगर डी भी एप्सिलॉन दे रहा है, इस केस में भी हम क्या करेंगे, देयर इज नो प्रोडक्शन, एप्सिलॉन दे रहा है तो नल का प्रोडक्शन दे रहा है, तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ए एस फिर से निकाल लेंगे। चलो एक एग्जांपल हेल्प सॉल्व करते हैं, फिर और ये अच्छे से क्लियर होगा, ओके। सबको ये रूल समझ में आया, इज इट क्लियर बाय एवरीवन, ठीक है। अभी और एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो और ये समझ में आएगा एग्जैक्टली हाउ इट इज वर्क, ओके। और एग्जांपल में ऐसा करते हैं, हाँ फॉलो निकालते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, फॉलो ऑफ ए एनी वेरिएबल, ठीक है, कैन नॉट कंटेन एप्सिलॉन। देखिए फर्स्ट हम निकालते थे तो क्या करते थे, एप्सिलॉन को क्या करते थे, अवॉइड करते थे, बट अगर मजबूरी में क्या होता था, इन ए वर्स्ट सिचुएशन वी हैव कंसीडर द एप्सिलॉन। बट यहाँ पे फॉलो में एक सबसे थंब रूल है, अगर किसी का भी मैं फॉलो निकाल रहा हूँ तो वहां पे क्या आ रहा है, प्रोडक्शन में एप्सिलॉन है, फॉलो में एप्सिलॉन आ रहा है, तो फॉलो में एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो मैं फॉलो निकाल रहा हूँ वो फॉलो गलत निकल रहा है, ये बहुत थंब रूल है, ओके। फॉलो लिखना चाहो तो आप लिख लो नोट में, इट इज ए नॉट ए रूल बट प्रैक्टिकली इट इज एप्लीकेबल। फॉलो डजंट कंटेन, अगर आप इस ग्रामर को देख रहे हो तो क्या हो रहा है, जब भी यहाँ पे जब भी लास्ट सिंबल हमारा क्या कर रहा है, एप्सिलॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, फॉलो, ये जहां से प्रोड्यूस हुआ है उसका फॉलो ले ले रहे हैं। तो हमें रूल भी ये बता रहा है
कभी भी एप्सिलॉन फॉलो के केस में नहीं आएगा। अगर वो डिराइव करता है तो फॉलो वहाँ पे जहां से प्रोडक्शन हो रहा है मैं उसका फॉलो कंसीडर करता हूँ। क्लियर? ठीक, तो लिखना चाहो तो लुक फॉलो डजंट कंटेन द एप्सिलॉन। चलो, we have here try to solve one example and calculate the चलो मैं प्रोडक्शन लिखता हूँ सीधे S derived to, चलिए मैं स्पेसेस दे रहा हूँ, कुछ स्पेशल सिंबल लिखना है मुझे। ओके, चलो ड्रॉ कर लेता हूँ। I think we choose some different color also। तो यहाँ पे S derived to beta, F derived to beta, capital A, and here is the alpha and D। Okay, and what is our second production? What is second production? Second production is the alpha derived to small a, ठीक है, small b and epsilon, ठीक है, and capital D derived small c after that D and after that epsilon। So clear? Everybody try to calculate the following। ठीक, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको। ओके, ये एग्जांपल मैं कर देता हूँ कि आप खुद ही सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगी, आप खुद ही सॉल्व करेंगे। प्लीज रिस्पॉन्ड। सर एक कर दीजिए, उसके बाद कर देना। ठीक है, ओके, एक मैं सॉल्व कर लेता हूँ जिससे सबको समझ आ जाए, ठीक है, फिर आप लोग करिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चलो, एक बार देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा समझने की चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉलो ऑफ ए निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल हमने ऊपर रूल पढ़ा हुआ है, फॉलो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या होगा। अगर इफ एनीवेयर गिवन द फॉलो ऑफ ए, मुझे फॉलो ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। फॉलो ऑफ ए निकालने के लिए मुझे लेफ्ट साइड देखने की जरूरत है। मैं देखूंगा ए जो है राइट साइड में कहीं पे अवेलेबल है क्या, उसको ढूंढूंगा, सर्च करूंगा। ओके, मैं देख रहा हूँ कि ए यहाँ पे अवेलेबल है, ए कहीं और पे है, कैपिटल ए की बात हो रही है क्योंकि मुझे फॉलो ऑफ ए क्या निकालना है, कैपिटल ए। ओके, तो जहां पे भी ए मिलेगा, मुझे ए यहाँ मिल गया, ठीक, मुझे जहां पे भी ए मिल रहा है उसके राइट साइड में जितने होंगे वो क्या कैसे कंसीडर होंगे, एज ए फर्स्ट। फिर से समझते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। फॉलो ऑफ ए का क्या मतलब है, पहले मैं राइट साइड में सर्च करूंगा कि कैपिटल ए का फॉलो निकालना है, तो कैपिटल ए कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे मुझे कैपिटल ए मिल गया, ये दिस वन। ओके, उसके जस्ट इमीडिएट राइट साइड में जितनी भी प्रोडक्शन या जो भी चीजें होंगी उसका मुझे क्या निकाल लेना है, फर्स्ट निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, चलिए मैं निकाल के बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे ये देखा ए यहाँ पे मिल गया, तो इसके आगे का मैं फर्स्ट ले लूंगा। इसके आगे क्या है, अल्फा एंड डी, तो व्हाट इज दिस वन, इस दे देते हैं। यहाँ पे मुझे मिल गया कैपिटल डी, दिस द अल्फा। चलो मैं अल्फा लिख लेता हूँ, दिस द अल्फा। कैसे कैसे हम यहाँ पे पहुंचे, फॉलो ऑफ ए का मतलब राइट साइड में देखेंगे ए कहाँ पे है, जहां पे मिल गया उसके जस्ट राइट साइड में जितने भी लोग हैं सबका फर्स्ट निकाल लो। चलो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, ये जो स्पेस दे रहे हैं ये स्पेस करने का कोई मतलब नहीं, आपको समझ में है इसलिए मैंने स्पेस दिया है। तो ये मत समझे कि सर स्पेस देने का भी कोई लॉजिक हो। ओके, ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ एक अल्फा क्या होगा, एनीवन,
ऊपर ग्रामर देख के बताओ बेटा। फर्स्ट ऑफ अल्फा, चलो मैं प्रोडक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ अल्फा, ग्रामर लिख लो। फर्स्ट ऑफ अल्फा क्या होगा? एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। सर A B C ए बी एप्सिलॉन, वेरी गुड। अब ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, तो मैक्सिमम बच्चों को ये चीज समझ आ गई। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे सर, यहाँ पे ए हो जाए, सॉरी ए होगा अल्फा, इसमें अल्फा मैंने लिख दिया, ठीक है, स्मॉल ए, ठीक है, इसके बाद कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल बी एंड एप्सिलॉन। और मुझे सबको पता है एप्सिलॉन को हम क्या करते हैं बेटा, वी हैव ट्राई टू अवॉइड द एप्सिलॉन। और ऐसा अवॉइड करते हैं तो क्या करते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू हम फिर से पुट कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ है, वी हैव ट्राई टू अवॉइड द एप्सिलॉन, सो टेक द यूनियन एंड पुट द दिस पर्टिकुलर वैल्यू, हम जो एप्सिलॉन की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑफ इट डी। एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, आई हो ना। We have give the several examples, so that is we have find out the first of a D. Everybody can understand how we can get the first of a D, क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉल a मिला था, स्मॉल b मिला था और एप्सिलॉन मिला था। तो एप्सिलॉन को रिमूव करने हैं, फर्स्ट का रूल मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो एप्सिलॉन को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा की जगह। ये एप्सिलॉन इनटू d, फर्स्ट ऑफ ए दिस वन, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए डी क्या गिवन है, ऊपर देखो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ए डी, स्मॉल सी एंड डी। इज इट क्लियर? चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, स्मॉल सी एंड डी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली जाती है, स्मॉल सी, फिर यहाँ से तो फिर से एप्सिलॉन मिल गया और हमने आपको बताया है, चलो अभी मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे एप्सिलॉन रखूंगा, ओके, फिर से यहाँ पे एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, प्लीज रिस्पॉन्ड, इफ यू पुट द एप्सिलॉन हियर एंड एप्सिलॉन हियर, व्हाट इज योर फर्स्ट ऑफ दिस वन? सर A B C D एप्सिलॉन। नहीं बेटा, अभी देखो ए बी तो मिल गया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे एप्सिलॉन आया था तो एप्सिलॉन हमने कहाँ पुट किया था, माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस सर, पर सर आपको हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है ना, तो एप्सिलॉन रखना ही पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, तो अभी फर्स्ट निकालना है तो एप्सिलॉन आएगा, बट यहाँ पे देखो एक रूल है जो अभी हम लोग फॉलो करते समय सीखे थे। हमने क्या सीखा था, इफ एस कैपिटल एस डिराइव टू बीटा ए डी और डी डिराइव टू एप्सिलॉन, तो देखो कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन रही है क्या, एप्सिलॉन जब आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्शन जहाँ से डिराइव हो रहा है, डी कहाँ से डिराइव हो रहा है, एस से, मैं इसका फॉलो ले लूंगा। एक बार मैं फिर से सेंटेंस रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, फॉलो ऑफ ए निकाल रहा था, इज इट क्लियर, फॉलो ऑफ ए निकाल रहा था। फॉलो ऑफ ए निकालने का क्या मतलब है, मैं देखूंगा किसी प्रोडक्शन में ए कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए मिला, जहाँ पे ए मिला जस्ट उसके आगे, यहाँ से देखो जितने उसके आगे जितने भी वेरिएबल टर्मिनल थे उसका आगे का हमने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया, उसके आगे का फर्स्ट ले लिया, कैलकुलेट करते रहे। बट यहाँ पे जो डी है, डी क्या है, एप्सिलॉन को प्रोड्यूस कर रहा है। दो सिचुएशन में हम अगेन रिवर्स फॉलो ऑफ एस लेंगे, किस सिचुएशन में, जिसका भी मैं फर्स्ट निकाल रहा हूँ इसके आगे कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे फॉलो ऑफ ए निकाल रहा हूँ, अब हम क्या करते थे, राइट साइड में ए देखते थे, राइट साइड में मुझे ए मिल गया। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि राइट साइड में ए जहाँ पे मिला है उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका मुझे फर्स्ट ले लेना है। बस इस प्रोडक्शन में तो कुछ है ही नहीं। एवरीबॉडी कैन गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सबको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ही बताओ, प्लीज रिस्पॉन्ड एस नो। हाँ प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ आ रही ना। देखो हमारा रूल क्या है कि देखो फॉलो निकालने का सिंपल सा रूल क्या है, ध्यान से समझो। जहां पे मुझे फॉलो निकालना है, पहले मैं राइट साइड में सारे प्रोडक्शन में देखता हूँ कि जिसका भी फॉलो निकालना है क्या वो राइट साइड में अवेलेबल है। पहले मुझे सर्चिंग का काम करना है, क्या राइट साइड में वो अवेलेबल है। यहाँ पे देखो अभी सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि राइट साइड में सर अवेलेबल है, हमने ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बनता है, यहाँ पे कह रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर टर्मिनल दैट में फॉलो इमीडिएट टू द राइट ऑफ ए। तो जो राइट साइड में ये मिलता है, इसके नेक्स्ट जितने भी राइट साइड में एलिमेंट होंगे उसका मुझे फर्स्ट निकालना है।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि राइट साइड में कुछ दिया ही नहीं है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ एस निकाल लेंगे। अब यहाँ की सिचुएशन देखो, अगर हमने क्या कि जहां पे भी मुझे राइट साइड में ए मिलता है उसके जस्ट जहां पे भी जिसका भी फॉलो निकालना है पहले उसको सर्च करेंगे और जस्ट इमीडिएट राइट साइड में जो भी एलिमेंट होंगे उसका फर्स्ट निकालना है। चलो हमने क्या किया यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि अगर हमारा फर्स्ट निकालने पे एप्सिलॉन आ रहा है तो एंड देन हम जो स्टार्टिंग हमारा वेरिएबल है हम उसका निकालेंगे फिर। नहीं, नॉट ओनली स्टार्टिंग, कंपल्सरी नहीं है वो मुझे स्टार्टिंग ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच का भी कोई टर्मिनल हो जो कि, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स जाके उसका फॉलो ले लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे फॉलो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, अगर यहाँ पे एस स्टार्टिंग सिंबल है तो एस का फॉलो क्या हो जाएगा, डॉलर। देखो ना, इफ देखो फॉलो ऑफ ए, इफ ए इज ए स्टार्टिंग सिंबल, ए स्टार्टिंग सिंबल है तो इसका क्या हो जाएगा, फॉलो या फिर डॉलर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्शन हम इसका फर्स्ट निकाल लेते, तो इसके फर्स्ट में हमें क्या मिल गया, एप्सिलॉन। मैंने आपको अभी एक थंब रूल बताया था ना कि ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा है कि फॉलो में हम नहीं लेंगे, हम फर्स्ट निकालना है तो एप्सिलॉन ले सकते हैं वो सिचुएशन में। पहले तो अवॉइड करेंगे, पुट करके देखेंगे कि नहीं आना चाहिए, बट अगर आ रहा है लास्ट में तो लेंगे, बट यहाँ पे लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन रखेंगे यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं, अरे ये तो ये कर रहा है, ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, हम फॉलो ऑफ एस निकालेंगे। चलो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। अभी मैं 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। अब इस कंडीशन में मुझे क्या मिल गया, सी डी एप्सिलॉन। अब हमें सबको पता है कि सर हमें एप्सिलॉन को तो नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने फिर से एप्सिलॉन किया और एप्सिलॉन को मैंने फिर क्या करूँगा, फिर मैं यूनियन का और यहाँ पे पुट करूँगा, फिर से यूनियन एंड फॉलो ऑफ एस हो जाएगा। सबको समझ आ रही है फॉलो ऑफ एस कैसे हो रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखिए मेरा कर्सर दिख रहा है कि नहीं, एवरीबॉडी कैन सी माय कर्सर, कर्सर दिख रहा है। देखो यहाँ से मुझे एप्सिलॉन मिला, अब मैं एप्सिलॉन की वैल्यू जब यहाँ पे फिर से पुट कर दूंगा, ठीक है, ए तो एप्सिलॉन पुट ही कर सकते हैं, यहाँ पे पहले पुट कर दे, फिर मुझे क्या मिला, एप्सिलॉन। हमने क्या बोला है कि अब जो भी ये प्रोडक्शन है, ध्यान से समझो, ये सेकंड रूल के तरीके से बन रहा है ना, यहाँ पे दिस वन, जो भी ये प्रोडक्शन है, वो पेन वाला है ना तो उसमें दिख नहीं रहा है अच्छे से। दिख नहीं रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? सर स्क्रीन दिख रही है, वो जो पॉइंट कर रहे हैं आप जहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, मतलब चलो मैं इसमें रेड कलर, रुक जाओ एक सेकंड। यू हैव सीन दिस वन, ये कर्सर दिखा आपको, अभी जो लाइन मैंने खींचा दिखा आपको? यस सर। गुड। देखिए तो हियर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डी है, डी क्या डिराइव कर रहा है, यहाँ पे जो मैंने लाइन, इस प्रोडक्शन को ध्यान से देखो, ठीक है, एवरीबॉडी कैन फोकस हियर, जिसका मुझे मान लिया यहाँ पे क्या निकालना है, फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए का मतलब मैं राइट साइड में देखा कि ए कहाँ पे है, ए के जस्ट राइट साइड में जितने लोग हैं उनका मैं फर्स्ट निकालूंगा, तो मैंने देखा कि ए, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए डी का मैं देख रहा हूँ प्रोडक्शन एप्सिलॉन है। तो अगर ये सिचुएशन है कि वो कोई प्रोडक्शन या तो उसके आगे कुछ नहीं है या तो उसका प्रोडक्शन एप्सिलॉन है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ एस ले लेंगे, ये रूल है। सेम सिचुएशन देखो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यहाँ पे डी है और डी क्या कर रहा है, एप्सिलॉन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन हमारी बनेगी ये क्या होगा, फॉलो ऑफ ए, हियर वी आर फॉलो द, अगर सर लास्ट में एप्सिलॉन नहीं मिलता देन ये नहीं करते ना फिर लास्ट, हाँ एकदम एग्जैक्टली, अगर लास्ट में एप्सिलॉन नहीं मिलता तब तो ये सिचुएशन नहीं आती। मैंने जान के वो प्रॉब्लम दी हुई है आपको ना, जब इजी काम हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एप्सिलॉन नहीं आएगा तब तो आंसर आ ही गया हमारा, ठीक है। व्हाट्स योर गुड नेम, गुड क्वेश्चन। सर साक्षी। हाँ साक्षी, गुड। देखो साक्षी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आता तो फिर क्या हम जाते क्या, नहीं फिर हम नहीं जाते, ठीक है। चलो अब मुझे निकालना है फॉलो ऑफ ए एस, चलो एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फॉलो ऑफ एस दिया है, यस। अब देखो फॉलो ऑफ एस क्या होगा, एस कोई प्रोडक्शन दे रहा है, ध्यान से समझो, मुझे क्या निकालना है, फॉलो ऑफ एस, प्लीज फोकस, फॉलो ऑफ एस निकालना है। किसी भी चीज का फॉलो कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा कि सर मैं पहले राइट साइड में सर्च करते हैं कि क्या है, कि एस है कि नहीं। देखो यहाँ पे राइट साइड में एस है, कैपिटल एस ढूंढ रहा हूँ मैं,
यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ एस निकल, यहाँ पे देखो follow of a rule number 1, we have focus here, rule number 1, follow of a is equal to dollar if a is the starting symbol। अब मैं चेक करूंगा कि यार राइट साइड में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे, देखो राइट साइड में एस इसमें भी नहीं है, देयर इज ए नो एस हियर, देयर इज ए नो एस हियर, मुझे एस तो कहीं मिल ही नहीं रहा। तो मैं देखूंगा क्या यस कैपिटल एस स्टार्टिंग सिंबल है क्या, अगर ये स्टार्टिंग सिंबल है तो एज पर द अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ये एज पर द रूल नंबर 1 वी हैव राइट द डॉलर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, समझ आ रहा है ये बात, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा डॉलर। एवरीबॉडी गेट दिस पॉइंट, ठीक है। चलो, और अगर मुझसे कह रहा है कि सर फॉलो अप है, टोटल आंसर क्या आ गया सर ये बता दीजिए, इतना इसमें हो गया कि समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू, कहाँ से ये ए मिला, हियर, यहाँ से A, and after that we have get the B, and after that we get the C, ठीक है। after that we have get the small d, and after that we get the dollar। ये मुझे क्या मिल गया सर, ये मेरा सॉल्व हो गया। इधर देखो सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। दिस इज द फॉलो ऑफ ए, ओके। चलो एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं ना, फिर ये और क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल अब आप सॉल्व करेंगे, ओके। चलो एक न्यूमेरिकल जो हमने पहले नहीं दिया था आपको, हाँ जो एक दिए थे जिसमें लेफ्ट रिकर्शन है, याद है सबको, e इक्वल टू e प्लस 1। थोड़ा से एक लेंदी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, नॉट लेंदी, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करना है तो क्लियर हो जाएगा ये क्या। Consider the following grammar and calculate the, you can write in your notebook, calculate the, consider the following grammar and calculate the first and follow। consider the, okay, अब हम लोगों ने दोनों चीजें सीखी है ना, तो दोनों सॉल्व करके देखेंगे। consider the following grammar and calculate first and follow, okay। चलो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ हमने ले लिया here we have solved the capital E, and E dash, okay, and E dash, okay, एप्सिलॉन लिखेंगे, and plus E dash, and T, यहाँ पे एप्सिलॉन है, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ ये मेंशन द एप्सिलॉन, ओके, and T derived to F T dash, derived to F T dash, and T dash T dash derived to, again यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, and star F dash, again इस न्यूमेरिकल का हम लोगों ने फर्स्ट कैलकुलेट किया था, हैव यू रिमेम्बर, याद है आपको? हाँ
हाँ मैंने सॉल्व किया था इसको, यहाँ पे बेटा एप्सिलॉन था। अब इसी का फॉलो भी निकाल लेता तो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उस समय इसलिए नहीं कराया था क्योंकि हमने रूल ही नहीं बताया था। हियर वी हैव ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ सो दैट एवरीबॉडी कैन दिस। Previously we have solved this one. Okay, we first ठीक है, उसको बोल्ड करने पे वो एप्सिलॉन उसमें मिल जा रहा है, इसलिए मैंने बोल्ड हटा दिया। चलो अब इसको फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे। और फर्स्ट एंड फॉलो अब मैं किसका निकालूंगा ये चीज ध्यान दो। वी हैव ए कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ एवरी नॉन टर्मिनल, सारे नॉन टर्मिनल का मैं प्रोडक्शन निकालूंगा। अब मुझे कैसे पता सर विच वन इज ए टर्मिनल विच वन इज ए नॉन टर्मिनल? सो इज ए ई डैश जी टी डैश, ठीक है, वी हैव राइट ऑल दिस। तो आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए, वी हैव सॉल्व इट हियर। सो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशंस क्या बनेगा इसका। ओके यहाँ पे मैं फर्स्ट कैलकुलेट करूंगा, आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेट द फॉलो। आप पूरा सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एज ए ओरल भी बताने लगे आप रिसर्च का ये होता है। यहाँ पे फर्स्ट का जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा ना वो ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन यहाँ पे कैपिटल ई, ठीक है, मुझे किसका किसका निकालना है। कैसे पता? अगर कोई ग्रामर दिया है और उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया, ध्यान से समझो। अगर न्यूमेरिकल में मुझे इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप है तो एक बार क्वेश्चन होता है ना सर मैं किसका फर्स्ट निकालूं किसका फॉलो निकालूं, तो वॉट एवर नॉन टर्मिनल अवेलेबल इन द लेफ्ट साइड मुझे सबका फर्स्ट निकालना है, सबका फॉलो निकालना है। किसका निकालना है? ई डैश टी टी डैश एफ। इज इट क्लियर? सो एवरीबॉडी कैन सॉल्व दिस वन, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे। चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, कोई डाउट होगा और आप मैं फुल सोल्यूशन अभी थोड़े टाइम बाद दूंगा। अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैसे आ रहा है आप इसको सोचिए। टी, ठीक है, एवरीबॉडी सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, पहले खुद से सॉल्व करो, जिससे सॉल्व हो जाए वो स्नैपशॉट मुझे भेजो। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ पे कोई ऐसा जिसको अभी फर्स्ट निकालने में भी दिक्कत है? एनीवन? अगर है तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डेली एक ही टॉपिक तो बता नहीं सकते ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। चलो फॉलो पहले ई का निकालते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ए ई, एक करके बता देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ए ई, फर्स्ट ऑफ ए ई कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ई जो भी प्रोडक्शन दिख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ए टी एन ई डैश। ओके, फर्स्ट ऑफ ए टी क्या है? फर्स्ट ऑफ ए एफ, यहाँ पे मिल गया। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है? आई डी एंड ओपन ब्रैकेट। इज इट क्लियर? आई डी एंड ओपन ब्रैकेट, तो हमें यहाँ से मिल गया आई डी एंड कॉमा करके ओपन ब्रैकेट। एक चीज ध्यान रखो, जब फर्स्ट निकालो तो सबका फर्स्ट निकाल लो एक साथ में। ओके, इसके बाद चलो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन एंड
प्लस। फिर यहाँ पे मुझे मिला था आईडी एंड ओपन ब्रैकेट, पता चल गया था क्योंकि फिर से ओपन ब्रैकेट हो गया था। फिर टी डेज का हमने क्या कैलकुलेट किया था, एप्सिलॉन and multiplication of it, and after that we have calculated the ID ID। हाँ चलो, anyone can respond, what is a follow of this one, follow of e किसी का सॉल्व हुआ क्या? डॉलर डॉलर तो आ रहा है, देखो एक चीज सबको कॉमन है, अगर ई स्टार्टिंग सिंबल है तो एक चीज तो बिना ग्रामर को देखे हुए आप लिख सकते हैं, क्या इसका सिंबल डॉलर आएगा ही आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है और हमारा रूल यही कहता है, वो हम ऊपर से भी देखेंगे। चलो, सिर्फ डॉलर आएगा, कुछ और भी आएगा? सर वो हाफ ओपन ब्रैकेट भी आएगा जो लास्ट वाले। यस यस, राइट राइट, व्हाट्स योर गुड नेम? सर वंशिका। यस, वंशिका गिव द राइट आंसर। यहाँ पे ये भी आएगा, कैसे आएगा बाकी लोग देखो, वंशिका को तो आ गया, ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे आएगा। मुझे क्या निकालना है, फॉलो ऑफ ए ई निकालना है, कैपिटल ई। कैसे निकालते हैं फॉलो ऑफ कैपिटल ई, ध्यान से समझो। यहाँ पे फॉलो ऑफ ए कैपिटल ई निकालने के लिए मैं राइट साइड में सर्च करूंगा कि कैपिटल ई कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल ई क्या है इस प्रोडक्शन में, बताते जाओ मुझे। इस प्रोडक्शन कैपिटल ई है, ओनली चेक द राइट साइड, बताओ राइट साइड में है क्या कैपिटल ई? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। इज इट राइट साइड अवेलेबल ओनली दिस प्रोडक्शन, है कि नहीं है? नो सर। नहीं है, इसमें है? नो सर। इसमें नहीं। इसमें सर लास्ट वाले में है बस। लास्ट वाले में। तो जहां पे मुझे ई मिलता था मैं क्या करता था उसके बाद, फॉलो कर, इमीडिएटली राइट साइड में जितना है सबका फर्स्ट निकालें। तो राइट साइड में क्या है, दिस वन, ठीक है। तो ये ब्रैकेट तो आ ही जाएगा। और एक चीज हमें सबको पता है, ये स्टार्टिंग सिंबल है इसलिए डॉलर आएगा, ओके। एक चीज ये थंब रूल ये भी मान लो, स्टार्टिंग सिंबल जो भी होगा तो उसमें डॉलर लगा दो, बाय डिफॉल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। चलो, एंड सेकेंड वन ई डैश। चलो ई डैश सॉल्व करते हैं। ई डैश कहाँ पे अवेलेबल है, कहीं पे है क्या? यहाँ पे है ई डैश अवेलेबल है। इसके आगे कुछ है, इसके आगे एप्सिलॉन डिराइव कर रहा है, इसके आगे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जब भी एप्सिलॉन डिराइव करता था कोई भी प्रोडक्शन या उसके आगे कुछ भी नहीं होता था तो क्या करते थे, फॉलो ऑफ ए ई लिखते थे। इज इट क्लियर? जब कोई प्रोडक्शन या तो एप्सिलॉन देता है या फॉलो ऑफ ए ई, या कोई आगे कुछ है ही नहीं जिसका मैं फर्स्ट निकाल पाऊँ। यहाँ पे ई डैश मिला, इसका मैं जो फर्स्ट निकाला ना इसके आगे का राइट साइड का, बट राइट साइड में कुछ है ही नहीं। और अगर अवेलेबल भी है तो ई डैश का एप्सिलॉन है, तो ऐसी कंडीशन में फॉलो ऑफ ए ई, रूल नंबर 2 ई लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम फॉलो ऑफ ए ई। एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट? प्रैक्टिस कर लेना, अभी मतलब फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो दिक्कत आ सकती है। चलो, अब मुझे क्या लेना है, मुझे टी का फॉलो निकालना है, ठीक है। चलो टी का फॉलो निकालना है, तो पहले टी देखो कहाँ पे है, टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। अब इसके आगे का फर्स्ट, ई डैश का फर्स्ट, ई डैश का फर्स्ट में क्या मिला मुझे, प्लस, प्लस मिला, ठीक है। और एप्सिलॉन भी मिला, तो मुझे पता है एप्सिलॉन नहीं लेते, ठीक। तो पहले जो प्लस मिला एप्सिलॉन नहीं लेते, एप्सिलॉन नहीं लेते तो क्या करते हैं, फिर से फॉलो ऑफ ए ई हो जाएगा। तो एक तो मुझे मिल गया क्या, प्लस एंड फॉलो ऑफ ए ई। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो लिखूंगा क्या, एक तो मुझे प्लस मिल गया, फिर मुझे एप्सिलॉन मिल गया। तो एप्सिलॉन की कंडीशन में एप्सिलॉन कहाँ से डिराइव हो रहा है, जस्ट उसका फॉलो ले लेंगे, तो ई का फॉलो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस दिस ब्रैकेट एंड डॉलर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं टी डैश। मुझे बताओ, आप लोग की तरफ से बताओ टी डैश क्या होगा, एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट इज टी डैश? चलो मैं सर टी का फॉलो नहीं समझ में आया। टी का फॉलो नहीं समझ आया,
पहले टी कहाँ पे है ये बताओ, यहाँ पे टी है, दिस प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द टी, इज इट राइट? यहाँ टी दिख रहा है आपको, बोलो। यहाँ टी मिल रहा है, तो जहां पे मुझे टी मिलता है हम क्या करते हैं, जहां पे प्रोडक्शन मिलेगा उसके राइट साइड में जितने लोग हैं उनका क्या निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा बताइए, प्लीज रिस्पॉन्ड। जहां पे ये मुझे टी मिला उसके राइट साइड में जो भी चीजें होंगी उसका क्या निकालूंगा, फर्स्ट निकालूंगा। इज इट क्लियर? व्हाट्स योर गुड नेम? अरे प्लीज टेल मी योर नेम, डोंट वरी। जहां पे मुझे टी मिला उसके राइट साइड में जो भी होगा उसका मैं फर्स्ट निकालूंगा। आप समझ पा रहे हैं ये लाइन की नहीं, पहले ये बताओ। आई एम ऑडिबल? यस सर, सर नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा। समझ गया ना? अब मुझे क्या मिल गया, ई डैश मिल गया, ठीक है। टी का मुझे फर्स्ट निकालना है, ठीक है, टी मिल गया, उसके आगे का फर्स्ट, तो ई डैश का फर्स्ट क्या होगा, प्लस होगा ना, और एप्सिलॉन होगा। तो हमें ये पता है कि एप्सिलॉन तो लेते नहीं है, प्लस ले लिया मैंने, एप्सिलॉन ले लिया। अच्छा, एप्सिलॉन नहीं लेते तो फॉलो के केस में क्या करते हैं, ये ई डैश जहां से आया हुआ है, ई डैश कहाँ से आया हुआ है, ई डैश यहाँ से आया हुआ है, हम इसके पास गए। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई तुम कहाँ से आए हो, ये बोले बस सर मैं तो ई से आया हूँ, तो कह रहे हैं एप्सिलॉन मैं ले नहीं सकता क्योंकि फॉलो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फॉलो ऑफ ए ई निकालना है, और फॉलो ऑफ ए ई निकालना नहीं, हमने ऊपर निकाल रखा है, देखो फॉलो ऑफ ए निकाल रहा है, क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर, तो मुझे प्लस मिल गया, और क्लोज ब्रैकेट दिस एंड डॉलर। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस। हाँ चलो आ गया तो जल्दी बताओ, व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ नाम बताइए अपना। साक्षी। हाँ साक्षी, अब टी डैश बताओ मुझे टी डैश का निकालना है, तो टी डैश कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे मिल गया, ओके ठीक है। इसके आगे का कुछ नहीं है, इसके आगे का कुछ नहीं है, और इसके आगे एप्सिलॉन, इसका क्या मतलब है, मुझे फर्स्ट ऑफ ए टी तो लेना ही होगा, फॉलो ऑफ ए टी। साथ में क्या मुझे मिल गया, मल्टीप्लिकेशन, तो एक हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड फॉलो ऑफ ए टी। आप समझ पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉलो ऑफ ए टी, व्हाट इज अ फॉलो ऑफ ए टी? तो यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड फॉलो ऑफ ए टी, कॉपी जस्ट फॉलो ऑफ ए टी, ओके। व्हाट इज अ फॉलो ऑफ ए टी, ये दिस वन, whole statement is copy plus close bracket। चलो नेक्स्ट का कर लो, टाइम खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे आया इसमें, वो फिर से बता वही दीजिए। सेम कैसा? मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, ध्यान से देखो, टी डैश कहाँ मिल रहा है मुझे, पहले देखो बताओ मुझे। टी डैश मुझे यहाँ पे मिल रहा है बेटा, देखो ये मिल रहा है, ये टी डैश मिल रहा है, मिला कि नहीं पहले ये बताओ, टी डैश मिला है कि नहीं? ये देखो मैं लाइन खींच देता हूँ, हियर वी गेट द टी डैश, ओके ठीक है। टी डैश के आगे जो भी है उसको मुझे फर्स्ट लेना है, इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है ना। जिसके आगे कुछ नहीं हो, और अगर ये जो लास्ट सिंबल है वो भी क्या कर रहा है, एप्सिलॉन डिराइव कर रहा है। माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, योर एंटायर स्क्रीन? आई थिंक सर नहीं है विजिबल नहीं है। चलो क्लास की, अरे कैसे नहीं सुन रहा है, ये स्टार दिख रहा है यहाँ पे, अब मुझे टी डैश का फर्स्ट ले लेना है। स्टार मिला कि नहीं पहले बताओ। सर टी डैश के राइट में तो कुछ नहीं है ना, तो हम अरे स्क्रीन माइज दिख रही है कि नहीं पहले ये बताओ पहले। सर नहीं दिख रही है। अरे एक सेकंड, तो फिर कैसे समझोगे जब स्क्रीन ही नहीं दिख रही तो? अरे सर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन पे। मैं अच्छा वेरी गुड, हाँ बोलते रहो। सर टी डैश के राइट में तो कुछ है नहीं, तो हम जिससे टी डैश डिराइव हुआ है वो ले लेंगे ना। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड। यहाँ क्लास की टाइमिंग ऐसी हो गई वो। चलो एक काम करो, इसको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, ठीक है। अभी इसको ध्यान से समझना कि हमने कैसे लिखा हुआ है, अपनी लॉजिक लगाना, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। सॉरी शायद टी डैश के केस में तो नहीं है ना, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ओके आई थिंक यू आर राइट। सर प्लस और हाँ प्लस, हाँ जस्ट कॉपी हो जाएगा वो, सीधा फॉलो टी यस कॉपी हो जाएगा, राइट। इसका सर फॉलो हो हम जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं लेंगे ना सर, ई डैश में जैसे नहीं लिया था। मल्टीप्लाई इसमें लेंगे, यस मुझे एफ वाला देख के मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ, ये सेम होगा, यस दिस इज द राइट आंसर, ओके यस।
हाँ इसके जब मैं एफ का निकालूंगा फिर वो आंसर आएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड कॉमा एंड दिस वन। ओके हाँ यू आर राइट ओके Yes. चलो हाँ हाँ सही कह रहे हो। चलो 1 सेकंड रुक जाओ, अटेंडेंस ले लें फिर आप लोग चले जाओ, ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू।